It says which of the following is not true in case of indifference curve. ICs में कौन सी चीज true नहीं होती है? Let's look into the options बेटा. The indifference curve are usually convex or bowed inwards. ठीक है. Second option क्या बोल रहा है बच्चे? It goes ahead and it says indifference curve. I hope this is visible. Let me zoom this a bit more. Indifference curve for two goods that are perfect complements are right angled. Indifference curve for two goods that are perfect substitute is downward sloping straight line. Indifference curve for two normal good is downward sloping straight line. बहुत ही ज्यादा easy question है बच्चे. There is nothing which is difficult in this question. बहुत ही ज्यादा easy question है ये. So I am giving you 1 minute. Try to go ahead and solve this question yourself. What do you think should be the answer to this question? I am creating a poll. You can go ahead and mark your answer in the poll. ठीक है? We will go ahead and we will solve these questions together. So do you think answer 1 is correct? Question number 1 की बात कर रहे हैं बच्चे. Answer 1, 2, 3 or 4. Which do you think is the right answer for this question number 1? ठीक है? Go ahead, try to answer this question. Which of the following is not true in case of indifference curves? बहुत easy question है बच्चे. So try to see. हाँ देखो, ICs का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है that they are convex to the origin. ICs ऐसे दिखते हैं. ICs are convex to the origin. ये प्रॉपर्टी कहां से आती है बेटा? what is the reason for this property? The reason for this property is diminishing MRS. तो क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का जो MRS है वो डिमिनिशिंग है, ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये एकदम ठीक बात है. Look into the second option बेटा. It says indifference curve of perfect complements are right angled. ये भी एकदम ठीक बात है. If we try to draw the ICs of perfect complementary goods, they are like this. है ना? They are right angled. तो ये एकदम ठीक बात है कि हम इनमें एक 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर सकते हैं. This is also correct. Better look into the third option that for perfect substitute they are downward sloping straight line. ये भी एकदम ठीक है कि ICs ऐसे दिखते हैं if we have perfect substitutes. इनकी ये प्रॉपर्टी रहती है कि अगर हम इनका MRS निकालें तो इनका MRS कांस्टेंट आता है. They have constant MRS, and the property of these indifference curve is that if we find out their MRS, अगर हम इनका MRS निकालें तो या वो 0 या infinity or at kink it is not defined. So there are 3 kind of MRS beta. Either it is 0 or infinity or not defined. ठीक है? In case of perfect substitute, the MRS is constant MRS होता है, right? And in case of the normal indifference curve, the usual indifference curve, the MRS is diminishing MRS होता है. तो बेटा the question is saying that which of the following is not true. इनमें से कौन सा वो statement है जो true नहीं है? And we know that the correct answer to this question is 4, that indifference curve for two normal good is downward sloping straight line. This is incorrect. If we are talking about usual normal goods, अगर हम normal goods की बात करते हैं so they are not straight line, rather they are curves. They are well defined curves like the diagram number 1. ऐसे दिखते हैं ICs. They are not straight line, they are well defined curves. So option number 4 is incorrect. So the correct answer to this question will be 4. The correct answer to this question will be 4. ठीक है जी. So this is how you can go ahead and solve this question. ठीक है बेटा. Now let me go ahead to question number 2. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. एक बार खुद से करने की कोशिश करो. आई एम गोइंग अहेड एंड स्टार्टिंग द पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 2. आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो अहेड एंड आंसर दिस. एक बार सब आंसर करने की कोशिश करेंगे. आई हैव स्टार्टेड द पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 2 बेटा. ध्यान से देखो. ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्राई टू रीड इट आउट. It is saying the condition for preferring risky income to a certain income. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 2.
कंडीशन फॉर प्रेफरिंग अ रिस्की इनकम टू अ सर्टेन इनकम, मतलब हम रिस्क को प्रेफर कर रहे हैं ओवर सर्टेनिटी। वी आर प्रेफरिंग रिस्क ओवर सर्टेनिटी, है ना। तो इट मीन्स रिस्की इनकम ओवर सर्टेन इनकम का क्या मतलब है बच्चे? इट मीन्स दैट सपोज आपको कोई से कोई आप कोई रिस्की एक्टिविटी कर रहे हो, लेट्स से यू आर गोइंग अहेड एंड यू आर प्लेइंग इन अ कैसीनो। हाँ, आप जाके कहीं पे खेल रहे हो, आप कोई रिस्की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, देन वी आर सेइंग दैट उस रिस्की एक्टिविटी से भी आपका एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज से 100 रुपीज, एंड यू कैन गेट द सेम एक्सपेक्टेड पे ऑफ, यहाँ पर भी आपको वही 100 रुपए यहाँ पे भी मिल सकते हैं, राइट। बट हियर यू आर गेटिंग बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क, यहाँ पे आपने कोई लॉटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, किसी रिस्क, कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, एंड देन यू आर गोइंग अहेड एंड गेटिंग दिस 100 रुपीज, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू 100 है, और यहाँ पे आपको वही 100 रुपीज सर्टेनिटी से मिल रहा है, यू आर गेटिंग द सेम 100 रुपीज विद सर्टेनिटी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है दैट विच ऑफ देम इज अ बेटर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स दिस सिनेरियो, इनमें से कौन सा वो सिनेरियो है जो इसको डिस्क्राइब करता है। सो बेटा वी कैन गो अहेड एंड सी, यस यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रिस्क लवर। दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एनी रिस्क लवर इंडिविजुअल। किस तरीके के इंडिविजुअल होते हैं ये? रिस्क लवर इंडिविजुअल होते हैं। अच्छा, बाकी दो को भी एक बार देख लेते हैं। बेटा रिस्क एवर्स इंडिविजुअल्स आर दोज इंडिविजुअल्स हु प्रेफर सर्टेनिटी ओवर रिस्क। तो जो इंडिविजुअल सर्टेनिटी को प्रेफर करेंगे रिस्क के ऊपर, दे विल बी कॉल्ड एज रिस्क लवर इंडिविजुअल। एंड रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल आर दोज इंडिविजुअल हु प्रेफर सर्टेनिटी एंड रिस्क इक्वली। जिनकी प्रेफरेंस इक्वल की होगी, हु विल बी प्रेफरिंग सर्टेनिटी एंड रिस्क इक्वली, they will be called as risk lover individual, as a risk neutral individual. तो all of you are correct. Yes, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट बेटा। ठीक है, लेट मी गो टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 is this. Try to read this question beta and try to answer this question in the poll. Okay beta, question number 3 for you. Try to read this out, try to answer it in the poll window. ठीक है बच्चे, देखो, डैश अराइजेस व्हेन द फर्म कैन प्रोड्यूस एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू आउटपुट्स मोर चीपली देन टू इंडिपेंडेंट फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ सिंगल आउटपुट। तो क्या बोल रहा है ये? ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? द क्वेश्चन इज सेइंग कि दो सिनेरियोज हैं, वी हैव टू सिनेरियोज विद अस। बेटा पहला सिनेरियो ये है इन विच देयर इज वन फर्म, ठीक है, एंड इट इज प्रोड्यूसिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आउटपुट्स, कुछ आउटपुट 1 और कुछ आउटपुट 2। इट इज प्रोड्यूसिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आउटपुट्स, दो आउटपुट्स प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज सिनेरियो नंबर 1। एंड सिनेरियो नंबर 2 क्या कहता है बच्चे? मोर चीपली। तो जो कॉस्ट एक फर्म को लगेगी ये दो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, इट इज गोइंग टू बी लेस than the cost involved when two independent firms produce each of the single output. तो फर्म 1 आउटपुट 1 प्रोड्यूस कर रहा है और फर्म 2 आउटपुट 2 प्रोड्यूस कर रहा है। What is this scenario called? इस सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं? अगेन ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन बेटा। तो क्या बोल रहा है? व्हाट्स द क्वेश्चन सेइंग? देयर आर टू सिनेरियोस। एक में देयर इज अ सिंगल फर्म, एक ही फर्म है जो दोनों आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरे में देयर आर टू सेपरेट फर्म्स, एक आउटपुट 1 प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा आउटपुट 2 प्रोड्यूस कर रहा है। एंड वी आर आस्किंग दैट विच इज अ बेटर सिनेरियो, इन दोनों में से बेटर, मतलब इसको हम इनमें से किससे डिफाइन कर सकते हैं दैट दिस हैज लेस कॉस्ट इन्वॉल्व्ड एज कंपेयर टू दिस। ओके, तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा, इट विल बी इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। जब भी हम स्कोप की बात करते हैं, whenever we talk about scope, in scope we try to answer this question that can the quantity be produced by a single firm or multi firms? क्या ये क्वांटिटी सस्ते में सिंगल फर्म से प्रोड्यूस हो सकती है या मल्टीपल फर्म से प्रोड्यूस हो सकती है? एंड इफ दिस क्वांटिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ सिंगल फर्म, अगर एक सिंगल फर्म इस क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर पाता है ज्यादा सस्ते में इन अ चीपर वे,
देन इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, उसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्कोप बोलते हैं। बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्कोप इज द कॉस्ट सेव व्हेन अ सिंगल फर्म इज इन्वॉल्व। जब एक ही फर्म इन्वॉल्व होता है दो आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, और उसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट बचती है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑन द अदर हैंड एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल गोज अहेड एंड आंसर्स कि हाउ योर आउटपुट विल रिएक्ट व्हेन योर इनपुट डबल्स। जब आपका इनपुट डबल होगा तो क्या आउटपुट डबल होगा, मोर देन डबल होगा, लेस देन डबल होगा, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होता है, देयर इज अनदर स्टेटमेंट जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेटा, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज रिलेटेड टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। इट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का ये मतलब है कि वी वांट टू आस्क आवरसेल्फ कि अगर हम लेबर, कैपिटल इन सबको डबल करेंगे तो सेम प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा, इन द सेम आउटपुट हाउ मच चेंज आई कैन सी, राइट? Whereas economies of scope beta, that is related to your diversification of products. Economies of scope is related to diversification of products. तो बच्चे economies of scope ये पूछता है कि when you will when will it be beneficial, कि क्या आपको दो आउटपुट एक फर्म में प्रोड्यूस करने चाहिए या अलग अलग आउटपुट अलग अलग फर्म्स में प्रोड्यूस करने चाहिए. So economies of scope ask whether you should be producing same output, different output in different firm, or put all the output in one firm. समझ रहे हो बात को? तो economies of scope जो होता है वो diversification से related होता है, और economies of scale standardization of product से related होता है, right? Okay बेटा, so the correct answer to this question will be economies of scope. ठीक है बच्चे, come to the next question now. Question number 4 पे आते हैं हम. Okay, try to answer this question beta. Question number 4. Let me create a poll. Everyone will try to answer question number 4 now. Okay beta, question number 4 on your screen. Try to answer it in the poll window. देखो question एक बारी क्या कह रहे हैं. In which oligopoly model firms produce homogeneous good? तो ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें firms homogeneous goods produce कर रहे हैं? Each firm treats price of its competitor as fixed, and all firms decide simultaneously what price to charge. तो ध्यान से हमें क्वेश्चन पढ़ना है. Firms क्या decide कर रहे हैं बेटा? Firms are deciding what price to charge. How is price determined beta? Price is determined simultaneously. तो बेटा ये simultaneous determination of your price, what is this called? क्या बोलते हैं इसको हम simultaneous determination को? That is nothing but Bertrand model, isn't it? तो correct answer to this question should be Bertrand model. अच्छा एक बात बताओ, can you tell me who developed duopoly model? Bertrand duopoly model कब develop हुआ था? तो पहली बात, it was developed in 1883. 1883 में Bertrand duopoly model develop हुआ था. ठीक है. Bertrand duopoly model बेटा, as the name suggests, Bertrand ने develop किया था. It is different from Cournot model. क्यों different है Cournot model से बेटा? क्योंकि when we talk about Cournot model, Cournot में हम quantity decide करते हैं. We have simultaneous determination of quantity. तो Cournot में we have simultaneous determination of quantity. Whereas Bertrand में बच्चे we have simultaneous determination of price. Bertrand में हमारा simultaneous determination of price होता है, Cournot में हमारे पास simultaneous determination of quantity होती है. क्लियर? अच्छा कुछ और चीजें हम देख लेते हैं बेटा. when we talk about Cournot model,
तो कूर्नो मॉडल केम इन द ईयर 1838। कूर्नो मॉडल कौन सा साल में आया? 1838। बेटा बर्ट्रैंड मॉडल इट केम इन द ईयर 1883। ठीक है। एजवर्थ मॉडल बेटा यहाँ पे कहीं दिया नहीं है, बट वो प्राइस इंडिपेंडेंट मॉडल कहलाता है। एजवर्थ मॉडल विच इज कॉल्ड एज प्राइस इंडिपेंडेंट मॉडल, बेटा दैट Edgeworth model, it came in the year 1897. बेटा Chamberlain model, all these models are very very important बच्चे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Chamberlain model came in the year 1933. बेटा Stackelberg model came in the year 1934, है ना? ये मॉडल्स हमें याद रखने जरूरी हैं। So these are some of the models that you have to remember. ठीक है बच्चे? Okay बेटा, now let me go ahead. अच्छा, sometimes in exam ना they will ask you कि इनको chronological order में arrange करो, arrange them in chronological order, जिसमें they can ask you कि arrange them in ascending order, arrange them in descending order। तो उस केस में ना you have to remember कि which model came in which year, ये बात को याद रखना जरूरी है, which model came in which year। Clear बेटा? ठीक है बच्चे, तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन देयरफॉर इज बर्ट्रैंड मॉडल। ये हमारा हो गया। ओके बेटा, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन, आई एम जस्ट ओपनिंग द पोल, इसको आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, प्लीज वेट फॉर पोल एंड ओनली देन आंसर बेटा। Question number 5 on your screen. Try to answer this question in the poll window. देखो ध्यान से। Who wrote that every man thus lives? ये ना, these quotes are very very important and you have to remember these quotes. इन quotes को आपको अच्छे से याद करना है। These quotes are very very important from the point of view of exam. अब पढ़ो ध्यान से। Who wrote that every man thus lives by exchanging or becoming in some measure a merchant, and society grows to be what is properly a commercial society? तो बेटा ये किसने लिखा था? Who wrote this? Anyone? Try to answer this. Who wrote this? The correct answer to this question is Adam Smith. But this was written by Adam Smith in his book called Wealth of Nation. किस बुक में लिखा उन्होंने बच्चे? He wrote this in his book called Wealth of Nation. कब पब्लिश की गई थी ये? It was published in 1776. तो आप जाकर वेल्थ ऑफ नेशन में चैप्टर 4 में जाकर यू कैन गो अहेड एंड सर्च दिस, आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी। एवरी मैन दस लिव्स बाय एक्सचेंज और बिकम्स इन सम मेजर अ मर्चेंट एंड सोसाइटी इटसेल्फ ग्रोज टू बी अ कमर्शियल सोसाइटी। थोड़ा मतलब समझते हैं। What it says is कि कोई भी इंसान अपने किसी ना किसी एस्पेक्ट में एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता ही होता है। एवरी पर्सन इज इन्वॉल्व इन डूइंग एक्सचेंज। जब आप एक शॉपकीपर से कुछ खरीदते हो, व्हेन यू गो एंड बाय समथिंग, या व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्लियर डेज जब बार्टर सिस्टम होता था, तो एवरी मैन वाज एक्टिंग लाइक अ मर्चेंट, है ना? और क्योंकि हर इंसान मर्चेंट की तरह एक्ट कर रहा था, वी हैड अ बार्टर सिस्टम, एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज। सो बिकॉज एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज, सोसाइटी वाज ग्रोइंग लाइक अ कमर्शियल सोसाइटी। क्या सोसाइटी थी बच्चे? कमर्शियल। So commercial society का क्या मतलब है? What is the meaning of commercial society? That everybody was doing some kind of transaction. सब लोग किसी ना किसी तरीके की transaction कर ही रहे थे। In that sense, it was a commercial society. So every man thus lives by exchanging. हर इंसान कुछ ना कुछ exchange करता ही करता है। Everybody is involved in some kind of exchange. और becomes in some measure a merchant. वो किसी तरीके का मर्चेंट बनता ही बनता है। And society grows to be what is called as commercial society. Clear बेटा? Okay बेटा. So the correct answer to this question will be answer number 4.